टर्न ऑन द कैमरा। उसके नोट्स मैंने भेज दिए थे हर्ष। आई थिंक दैट वाज द सेम डे व्हेन यू रिक्वेस्टेड टू रिकॉर्ड द क्लास। डिस्टेंस Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट की इक्वल तभी होगा जब मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अब किसी भी मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है या नहीं, वो कैसे हम पता करेंगे? मोशन इज स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। सो क्वेश्चन में अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तब तो सिंपल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ओनली इफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ऑलवेज डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एज अ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। Displacement is not guaranteed that final position minus initial position will be displacement. For distance, we have to first make sure that there is no turning point. There is no turning point means during the whole journey there should not be any change in direction. And if there is change in direction at that point of turning back, the instantaneous velocity will become zero. So we have to check that is there any point where the body is changing its direction. If it is changing its direction, then we change the whole journey, break into these two separate intervals, t0 to t1 and t1 to t2. We'll separately find out their displacements, and then for the distance we will add the mod or magnitude of this path length covered. तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में एक तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चंस में डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज। अगर ये ऐसा ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, देन इट इज नॉट अ पॉसिबल ग्राफ बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है। अनदर, अगर ग्राफ में क्वेश्चन में ग्राफ से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, इट विल बी द एरिया अंडर। सो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, velocity and speed. So average speed is total path length covered divided by, थोड़ा हम शॉर्टकट में पढ़ेंगे, सबको पता है। Average speed is total path length divided by total time. Instantaneous speed will be the rate of change of path length covered at that particular instant. So जब हम instantaneous calculate करते हैं तो differentiate करना है। जब हम किसी large interval में करते हैं, then we have to just normally take the final total length of the path. Average speed is always a positive because speed is magnitude of velocity, the scalar quantity. Similarly, average velocity will be total displacement divided by total time taken. Displacement is final minus initial position, x2 minus x1 divided by t2 minus t1. Path कैसा भी हो, बीच में कुछ भी हो, but we always bother only about the initial and final position, and the instantaneous velocity is rate of change of displacement. ये सिमिलर रिलेशन है। डिफरेंशिएशन को ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो अगर हमें किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स-टी ग्राफ। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स-टी ग्राफ। और एवरेज वेलोसिटी किसी ग्राफ में कैसे पता पड़ेगी? एवरेज विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। किसी भी जर्नी में x1 सपोज t is equal to t1 से t is equal to t2 के बीच में अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, we will just join those 2 points, and the slope of line joining those 2 points will represent the average velocity. Average velocity from the graph will be slope of line joining the 2 points. Initial point is A, final point is B. Instantaneous velocity के लिए हमें हर एक पॉइंट पर tangent ड्रॉ करनी होगी, and the slope of the tangent will be defining the instantaneous velocity. Speed में total path length cover करेंगे. Similar logic will be for velocity. Similar logic will be when we find the rate of change of velocity, it will represent acceleration. अगर हम केवल initial velocity और final velocity की change calculate करते हैं, that will be average acceleration. Average acceleration is change in velocity divided by time taken, v2 minus v1 divided by t2 minus t1. It will be again the line slope of the line joining initial position to final position. Instantaneous will be given as, एक बार हम सारे formulas list out कर लेते हैं, सभी को पता है, जो नहीं होंगे वो
रिवाइज हो जाएंगे. A is equal to differentiation of v by dt, which is double differentiation of displacement. So velocity time graph का अगर हम slope निकालते हैं, then that is slope of vt graph that will represent instantaneous acceleration. Average will be slope of line joining those 2 point initial velocity to final velocity. अब इसमें एक जो दो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं. सपोज बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी में जो डिस्टेंस होगा दैट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू displacement for the large interval of time. For large interval of time, distance की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी. दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दोगे. डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम टेकन इज एवरेज स्पीड. डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइड बाय टाइम टेकन इज एवरेज वेलोसिटी. So in any journey, in any motion, average speed is always greater than or equal to magnitude of average velocity. बट जब हम कोई बहुत छोटा सा इंटरवल लेते हैं, वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल लाइक dt, इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल, कितना कैसा भी कर्व, अगर हम बहुत छोटा सा इंटरवल लेते हैं, देन दिस विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन. इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन. उसके लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी ऑलवेज इक्वल. फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल टाइम dt, distance as well as displacement length will always be same. So that means डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है तो हम ds by dt कर देंगे, which means the instantaneous speed is always equal to the magnitude of instantaneous velocity. एवरेज में तो स्पीड बड़ी होगी हमेशा, बट फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल instantaneous velocity is always equal to instantaneous speed. Vedika? Yes, sir. Achha, no, I just saw your message. Please resend. So I was just confirming you are there. Fine. So another few points इन पे क्वेश्चन आ चुके हैं. एवरेज स्पीड हमेशा इंस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होती है. इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड द रीजन इज क्वाइट क्लियर. फॉर एनी स्मॉल इंटरवल, द डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. सिंस कैसा भी वो कर्व हो, इफ वी टेक अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू displacement. When we have to find another reason is another question is, किसी भी जर्नी में सपोज दिस इज x वर्सेस t, started from point A to point B. From point A to B, इसकी अगर एवरेज वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, it is not possible that it has never achieved 20 meter per second in between A and B. A और B के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी वो कम से कम एक बार पूरी जर्नी में अचीव होनी चाहिए. At least there will be one such point where slope of tangent will be always equal to the slope of line joining those 2 points. यहाँ पे AB लाइन की जो स्लोप है that represent average velocity, tangent की जो स्लोप है that represent instantaneous velocity. So instantaneous velocity magnitude is always equal to average velocity at least for one instant of time for any journey. At least एक से ज्यादा भी हो सकता है, at least for one instant of time during this journey. ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हमारी एवरेज स्पीड आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर और पूरी जर्नी में हमने 40 किलोमीटर कभी भी अचीव ही नहीं किया. Here this is happening exactly at point t is equal to t1. At time t is equal to t1, the instantaneous velocity is equal to magnitude of average velocity. Right? So these points, इसमें कुछ objective, कुछ language wise question आ चुके हैं. Theoretical questions, numerical जो easy होते हैं, theoretical questions में अक्सर गलती हो जाती है क्योंकि समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं. Average velocity. सर आप P वाला पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दोगे? बिल्कुल बेटा, ये जो है ये किसी भी पॉलिटिकल का एक्सटी ग्राफ है और हम सपोज 2 पॉइंट्स ले रहे हैं बिटवीन ए एंड बी.
the logic is that for any journey, दो पॉइंट्स के बीच में जो भी उसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी, that must have been achieved at least once. It is impossible that particle doesn't acquire the instantaneous speed as average speed. A से B के बीच में अगर average speed आई 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड A से B के बीच में किसी ना किसी पॉइंट पे स्पीड जरूर होगी. Okay, sir. At least there will be one such point where instantaneous velocity is equal to magnitude of average velocity. Using graph अगर हमें कैलकुलेट करना हो, जब हम velocity time graph की का एरिया कैलकुलेट करते हैं, velocity will be dx by dt, इसको उल्टा कर लेते हैं, dx is equal to v dt, integrate on both the sides, so velocity को integrate करने पे displacement मिल जाता है, displacement का मतलब final position minus initial position. So if we integrate velocity as such, it will be giving displacement not distance. Distance के लिए कुछ और करना पड़ेगा. Distance के लिए एक तरीका था, हम पहले ये पता करें कि वो बॉडी कहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, and then we change that journey into two parts. That was the one method. Second method is कि हम velocity से speed निकालें. Speed कैसे निकालेंगे? अगर velocity negative है, velocity is -3, तो उस -3 को हम +3 कर देंगे उस पॉइंट पे जो उसकी स्पीड होगी, that is the magnitude of velocity vector. For any journey, velocity time graph अगर हम कैलकुलेट करते हैं, velocity time graph से कैलकुलेट करते हैं, this v is your velocity. Area under velocity time graph will be considered displacement, और इसके लिए above axis area is positive, below the axis area is negative. This A1 and this A2 will give displacement. A1 will be taken positive. Area under velocity time graph give displacement. जब distance कैलकुलेट करना होगा, this is area under VT graph. जब हम VT ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो या तो हमें दोनों को मैग्नीट्यूड बनाना होगा. डिस्टेंस विल बी इक्वल टू A1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A2, या दूसरा तरीका है इस वेलोसिटी के ग्राफ को स्पीड के ग्राफ में चेंज कर लेते हैं. द करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टू स्पीड कन्वर्जन, जहां जहां पे स्पीड वेलोसिटी नेगेटिव थी उसको बस पॉजिटिव कर देंगे. दिस इज सेम पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये जितना पोर्शन नीचे था वो ऊपर की तरफ आ जाएगा. This is the corresponding speed time graph for this velocity time graph. इसमें दोनों A1 A2 ऊपर आ जाएंगे, and then we will calculate the distance as A1 plus A2. Velocity time graph के एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिलता है, लेकिन हम उसी एरिया को यूज करके डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of some modification. If we use acceleration time, acceleration is dv by dt. एक्सेलरेशन के फंक्शन से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. dv is equal to a times dt. 0 से t इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, सो लेफ्ट साइड में आ जाएगा v minus u, 0 to t a dt. एक्सेलरेशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी नहीं मिलेगी, हमें मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. And similarly from the area under acceleration time graph will also give change in velocity, doesn't give velocity. Right? And it has to be always instantaneous acceleration, तभी हम instantaneous acceleration से कैलकुलेट करेंगे. अगर एवरेज वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, then formula is displacement using average velocity is average velocity multiply by total time taken. क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बीच में कैसा ग्राफ है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है. We calculated the average velocity of the whole journey multiplied by total time taken. This is the total displacement. Distance कैलकुलेट करेंगे, that will be average speed multiplied by total time. Similarly, average acceleration multiplied by time will be total change in velocity. Acceleration का एक और फॉर्मूला था, उसको भी हम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं. What was that formula? Another formula for acceleration in terms of acceleration means instantaneous, unless इसको x में change कर लेते हैं. Multiply by dx divide by dx, ये dx by dt को एक साथ कर लेंगे तो बन जाएगा dx by dt times dv by dx. dx by dt becomes v
into dv by dx. A is equal to v into dv by dx. That is the total. That is another formula for acceleration. अगर x का function given है velocity तो हम dv by dx use करेंगे. If velocity is given as function of time तो हम dv by dt use करेंगे. So from this we will find out acceleration, instantaneous acceleration. Right? अगर हमें acceleration given है और velocity निकालनी है, so v dv is a times dx, and then this we integrate from 0 to x both the sides. लेफ्ट साइड में ये इंटीग्रेशन आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 लिमिट फ्रॉम v टू u 0 to x a dx. v square minus u square by 2 is 0 to x a times dx. एक्सेलरेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. एक्सेलरेशन विल बी सब्स्टिट्यूटेड एज अ फंक्शन ऑफ x. अगर एरिया देखते हैं, this is the area under acceleration time graph. Integration represent always area. So area under acceleration position graph gives v square minus u square by 2. राइट. so बहुत सारे फॉर्मूले हो गए. हम इसको याद तो रखने के लिए एक फॉर्मूला शीट बनाई रखी होगी आप लोगों ने. लेट्स डू मोर क्वेश्चंस so थोड़ा और क्लैरिटी आएगी. या क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं. The position of a particle varies with time as x equals to 6 plus 12t minus 2t square. X is in meter, t is in second. Distance traveled by particle in first 5 seconds. Position given है और calculate करना है हमें distance. So obviously we will have to make sure that the particle is always in the same direction. तभी हम distance से calculate कर पाएंगे. Otherwise we have to break this journey into two part. क्योंकि अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे सीधे फाइनल t को 5 पुट करके माइनस t को 0 पुट करके, then it will not give the displacement, sorry, distance, it will give displacement. Right. So in this question, if we have to find the distance, for the distance we need to find whether the body is moving in same direction all the time or it is changing its direction. डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें टर्निंग पोजीशन चेक करना जरूरी है. टर्निंग पोजीशन इज देयर और नॉट. सो v को dx by dt. 6 का डिफरेंशिएशन 0. आई होप दैट डिफरेंशिएशन क्लियर है. अगर किसी को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना. आई विल अरेंज द एक्स्ट्रा क्लास फॉर दैट. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 12 minus 4d एंड दिस 12 minus 4d. एक ही फॉर्मूला है सिंपल सा डिफरेंशिएशन का जिसको हमें याद रखना है. x to the power n का डिफरेंशिएशन इज n into x to the power n minus 1. दूसरा फॉर्मूला जो याद रखना है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट will be 0. That's it. Differentiation of x with respect to x will be 1. ये velocity 0 कर देते हैं for the time instant where the particle changes its direction. युक्ता. यस सर. बेटा ये थोड़ा रैपिड फायर टाइप ही चलेगा. स्पीड ठीक लग रही है या कुछ और स्लो करें? जी सर सही है. सही है. ठीक है. ये क्वेश्चन साथ साथ करते रहना आपको और जो ना है पूछ लेना किसी भी ठीक है तरह सर. से. irrespective of all the जो भी है अभी नेक्स्ट उसको एक फ्रेश. सर सही है. हाँ बेटा. यस सर v 0 क्यों हुआ? बेटा v हम 0 इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि ये जो उसने 5 सेकंड बोला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो सोचते ही मत. डिस्प्लेसमेंट में t को 5 पुट करते और माइनस t को 0 पुट करते. दैट वुड हैव बीन डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट. Displacement is final position minus initial position. Right? यस सर. अब अगर हम देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब होता है. डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इफ देयर इज नो टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट नहीं है क्या मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम.
तो वो तभी होगा जब वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता रहे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जहां पर डायरेक्शन चेंज होती है वहां पर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाती है। जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, गोइंग अप 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 एट द मैक्सिमम हाइट बिकम जीरो एंड देन अगेन स्टार्ट कमिंग डाउन। यस ठीक सर। है, हाँ तो सर। हमें पहले ये मेक श्योर करना है कि 0 से 5 के बीच में वो डायरेक्शन चेंज हो रही है नहीं हो रही। अकॉर्डिंगली विल फाइंड आउट। सो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की, वेलोसिटी को 0 पुट किया, वी गॉट t इज इक्वल टू 3। सो दिस जर्नी इज टेकिंग टर्न 0 से 3 एक डायरेक्शन में और 3 to 5 इन डिफरेंट डायरेक्शन। t is equal to 0 to t is equal to 3 second is suppose s1, or t is equal to 3 to t is equal to 5 in opposite direction, and that is s2. We need to calculate this. Displacement अगर हम calculate करेंगे तो displacement will be only this much. This is the displacement, initial position और final position के बीच की distance. Distance calculate करने के लिए पहले हम forward direction में calculate कर लेते हैं। Position at t is equal to 3 minus position at t is equal to 0. S2 calculate कर लेते हैं। Position at t is equal to 5 minus position at t is equal to 3. बुक में थोड़े और मेथड भी लिखे होते हैं कि पहले वेलोसिटी निकालो, फिर वेलोसिटी से स्पीड निकालो, फिर इंटीग्रेट करो, बट दैट्स लेंथी, दिस इज द इजीएस्ट। t को 3 पुट करो, x के फॉर्मूले में कितना आएगा? पुट पुट x इक्वल्स टू t इज इक्वल टू 3, 6 plus 12t minus 2t square. So 36 plus 6 42, 42 minus कितना? 29, I suppose. 24। 29. 29. 46 44 minus 18, sorry, 42 minus 18, so it is 24। यस सर। 24 t को 0 पुट करोगे तो आ गया 6, which means s1 की वैल्यू 18 मीटर। t को 5 पुट करते हैं, 6 plus 60 minus t को 3 पुट किया था हमने तो 24 आ गया था। This is how much? 16 minus 24, so it is minus 8। अब क्योंकि हमें डिस्टेंस ये अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए माइनस 8 है। 18 फॉरवर्ड में और s1 का मैग्नीट्यूड प्लस s2 का मैग्नीट्यूड, 18 plus 8 that is 26। वृद्धि वृद्धि Yes, sir. you understood this method? Yes, sir. Yes, sir. When we have to find distance, we have to make sure that body is moving in one direction or it is changing its direction. सर बस एक डाउट था सर, जब हमने इससे निकाला कि t इक्वल टू 3 सेकंड्स पे देयर विल बी टर्निंग पॉइंट, तो सर टर्निंग पॉइंट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो समझ नहीं आया। डायरेक्शन चेंज यार। अच्छा, चलते टर्निंग पॉइंट हुए मतलब कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 पे कितनी है? t3 आएगा। हाँ, t 0 पे वेलोसिटी कितनी है पूछा मैंने। 12। 12 पॉजिटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। फिर t यस इज इक्वल सर, टू 3 पे 0 हो गई, t इज इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी कितनी आई? नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव। सो व्हिच मींस नाउ इट हैज रिवर्स द डायरेक्शन। ओके सर, अब समझ आ गया। हाँ 2 से 3 तक पॉजिटिव है, 3 से 5 में नेगेटिव है। सो दो अलग अलग जर्नी को हमें करना है डिवाइड। यस सर। Okay, next question. So we have done almost all the concepts, similar concepts. बस हम इसके क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं। या क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A body traveling along a straight line traversed 1/3 of total distance velocity v1. The remaining part of the distance was covered. The remaining part मतलब 2/3 of the distance was covered with velocity v2 for first half of the time and with v3 for the second half. The mean velocity averaged over the whole time of motion. Yes.
So इसमें जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड किया है. पहले के लिए फर्स्ट 1/3 स्पीड इज गिवन v1. सेकंड 2/3 जो टाइम बचा उसको दो अलग अलग इंटरवल में ट्रेवल किया है. So let's say if we consider the total journey is of 3s, first 1/3 is s and second 2/3 is 2s. पहले वाली जर्नी में स्पीड इज v1 फॉर दिस होल टाइम t1. सेकेंड वाले हाफ को उसने दो अलग अलग टाइम इंटरवल में क्रॉस किया है विद डिफरेंट स्पीड. पहले t2 में स्पीड है v2 और दूसरे t2 में स्पीड है v3. So ऐसे एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे. इट विल बिकम इजी टू विजुलाइज. द बॉडी हैज कवर्ड फर्स्ट 1/3 with speed v1. Remaining part of the distance was v2. Remaining जो part है उसको दो equal time interval में t2 t2 के दो time interval में क्रॉस किया है. And we have to find the average velocity because it is moving in the same direction without any change. So velocity and speed, average velocity and average speed would have been same. Total displacement divided by total time taken. Kinematics में questions आते हैं और बहुत easy से भी आते हैं और कुछ बहुत मुश्किल होते हैं. Kinematics is supposedly the easiest also and toughest also. तो हम देखेंगे दोनों तरह के questions how to solve with the, because kinematics में करने के बहुत सारे method है. हम किसी के frame में चले जाएं, हम ground के frame में करें. Total distance is 3s, total time is t1 plus 2t2. जब t1 कैलकुलेट करना है, t1 तो पहले हाफ का टाइम है, so s upon v1. That's as simple as that. t2 कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे लॉजिक. इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है सेकंड हाफ में. So it will be v2 times t2, velocity into time is displacement. पहले t2 टाइम में displacement is v2 t2. Second t2 टाइम में displacement is v3 t2 and that is equal to 2s. For the first 1/3 of the journey and the remaining 2/3 of the journey. यहाँ से t2 कॉमन कर लोगे अगर आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाय v2 प्लस v3. तो 3s divided by s by v1 plus 2 times 2s divided by v2 plus v3. क्या है आंसर? Is it B? समझ में आ रहा है? We have to break the entire journey into two parts. First 1/3 and second 2/3. Yes, sir. BR. डाउट किसी को इसमें? s s कैंसिल आउट हो जाएगा. Take the LCM. 3 ऑलरेडी था. v1 into v2 plus v3. Yes, sir. और इधर आ गया v2 plus v3. 2 into 2 4. 4v1. सर बी आ रहा है. हाँ भी आएगा बिल्कुल सही. Yes. Next question is question number 4. The particle located x equals to 0 at t is equal to 0 start moving along the positive x direction with a velocity that varies as v is equal to alpha root x. Then the displacement of the particle varies. क्या करेंगे इसमें? velocity x का function given है और x t का function चाहिए हमें. Velocity is given as function of x, v is alpha root x और हमें x चाहिए as a function of time. v is equal to alpha root x. b को लिख सकते हैं dx by dt. कैसे पता पड़ेगा? ये करना है क्योंकि x और t में रिलेशन और कहीं से नहीं आएगा. So we will change v as dx by dt. dx by root x is equal to alpha times dt. Integrate on both the side. इधर 0 to x क्योंकि 0 पे 0 था. 0 to t. 1 upon root x integration 2 root x. इंटीग्रेशन के लिए भी बस एक ही फॉर्मूला यूज करना होता है. x to the power n is x to the power n plus 1 divided by n plus 1.
ये माइनस हाफ प्लस वन डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा dt का इंटीग्रेशन t root x is alpha t by 2 x will be equal to alpha square t square by 4. Right? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी में डाउट हो तो पूछ लेना, जिसको भी किसी को भी डाउट होता है अगर इसमें x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। थोड़े से हमें ज्यादा क्वेश्चन करने हैं एंड टॉपिक इज रिलेटिवली इजी, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग लिटिल फास्टर। क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन सिमिलर टू दैट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 17। Question number 16 and 17. A particle is moving under constant acceleration. A is equal to alpha t plus beta t square. The position and velocity of the particle at t is equal to 0 is x equals to x naught and v is equal to v naught. Solve it. क्या आएगा इसमें आंसर? एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो पहले मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी v minus u here is v naught integration from 0 to t। वो ए ऑप्शन में ये गलत लिख रखा है ना? अच्छा, दो बार जो इक्वल लगा है। हाँ, ए वो ब्रैकेट में टी आएगा सिर्फ, वो बीच में इक्वल नहीं है। ये कर लो, वो x होगा ना वो as a function of t है। 0 to t alpha t plus beta t square times dt, alpha t square by 2 plus beta t cube by 3, and so velocity as a function of time, instantaneous velocity is v naught plus alpha t square by 2 plus beta t cube by 3। v को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ऊपर हमने कैलकुलेट कर ली है वेलोसिटी एट टाइम t। v naught plus alpha t square by 2 plus beta t cube by 3 into dt। सर नहीं आया समझ, दोबारा बता दो। यस अच्छा, ये स्टेप नहीं आया समझ? कौन सा स्टेप? पहला वाला? समझा दो, शुरू से समझा दो। शुरू सर से वो बता। वाला समझ नहीं आया सर, जो आपने वो लिखा है v माइनस v नॉट इक्वल्स टू a dt। ओके, ठीक है, मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी। फॉर्मूला होता है फॉर दी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है वेदिका? इफ यू इंटीग्रेट वेलोसिटी व्हाट वी गेट? If we integrate velocity, we get distance. If we integrate acceleration, which function we get? Velocity. No, we don't get velocity. हर्ष, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है? सर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पे सर वेलोसिटी। When we integrate acceleration, what do we get? इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लगाते हैं, लिमिट 0 to t। 0 पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको ये फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में याद रखना है। अगर एरिया निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम का तो भी हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे तो एक्सेलरेशन मिलता है, लेकिन एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पे वी डोंट गेट वेलोसिटी, वी गेट चेंज इन वेलोसिटी।
वेदिका अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ये चेंज कैसे बन गया? लेफ्ट में इंटीग्रेट किया dv का तो v आ जाएगा, और जब उसमें लिमिट लगाएंगे हम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, दैट विल बिकम v माइनस u। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे x2 माइनस x1 बनता है चेंज इन पोजीशन, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे x2 माइनस x1 आएगा, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं फिजिक्स में, इट इज ऑलवेज बिटवीन द लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, सो हमेशा ये दो पोजीशंस का चेंज होगा। यस सर, आगे समझ में। Okay. सो एक्सेलरेशन, उसके बाद फिर से अपने आप करके देखो। एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन था, दिस क्वेश्चन एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन, और हमें उससे निकालना है क्या? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में ये ए गलत था, दिस शुड बी वी, शायद आप ये कह रहे थे। ये चारों क्वेश्चन में पोजीशन ही है बाय द वे, xt xt xt। टाइपिंग so Vedika, it is acceleration, v minus u is integration of 0 to t a dt। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पे वेलोसिटी नहीं मिलती, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पे चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे पोजीशन नहीं मिलता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता, हमें मिलता पोजीशन नहीं मिलता, हमें मिलता है चेंज इन पोजीशन, एंड चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो v minus v naught is equal to 0 to t, a is alpha t plus beta t square times dt। Now clear? Yes, sir. Yes, sir. So पहले यहाँ पे जो v है लेफ्ट राइट साइड में इंटीग्रेट करें 0 to t, on this left side v is velocity at time t, v minus v naught will be alpha t square by 2 plus beta t cube by 3। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई v नॉट प्लस अल्फा t स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टाइम्स t क्यूब बाय 3। सो नाउ वी हैव वेलोसिटी एज अ Sir? फंक्शन ऑफ, यस सर ये इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया। इंटीग्रेशन समझ में आया? ओके, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n को इंटीग्रेट करने पे x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। अगर हम x को इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर कितनी होती है यहाँ पे? 1, ठीक है? यस सर। x to the power 1, so अगर 1 plus 1 divided by 1 plus 1, it becomes x square by 2। अगर हम x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x to the power 3 by 3। 3/3 ओके सर। 1 upon x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये इसको पहले ऊपर लेके जाएंगे, x to the power -2 हो जाएगा, -2 plus 1 divided by -2 plus 1, थैंक यू सर, तो ये गॉट इट। जाएगा -1 by x। ऐसे यहाँ पे अल्फा तो बाहर निकल लिया, इंटीग्रेशन किसका था? t का। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3, करेक्ट? अब वेलोसिटी एट टाइम t हमें मिल गया, और हमें कैलकुलेट करना है पोजीशन एट टाइम t। सो टू फाइंड द पोजीशन एट टाइम t वी विल इंटीग्रेट वेलोसिटी। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन भी डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, और क्वेश्चन में गिवन था दैट इनिशियल पोजीशन इज x नॉट। राइट, सो वेलोसिटी का जो फंक्शन था उसको हम इंटीग्रेट पुट कर देंगे, v नॉट प्लस अल्फा t स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा t क्यूब बाय 3 टाइम्स dt। Right? Anya, what's the answer?
So I'm getting the first one. First, Is it? Yeah. Yeah, it's the first one. Oh wait. Yeah, it's the first one. Because you integrate the alpha t square by 2, so then you increase. Yeah, it's first. it's first, right? So Yeah. V naught dt integration will become t alpha by 2 already था, t square integration become t cube by 3. इतना मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, देख लेना. b beta by 3 t cube integration become t4 by 4. Limit from 0 to t. X minus x naught is v naught t plus alpha t cube alpha t cube by 6 plus beta t to the power 4 by 12. Done? Yuta understood? Yes, sir. Okay. Fine. Next question. Question number 17. Question number 17. The position x of a particle varies as at square minus bt cube. Acceleration of the particle at time t when it will be 0. Acceleration at time t of the particle will be equal to 0. Okay. दो बार differentiate करेंगे and equal to 0. Question number 17. A by 3b. Okay. So when you differentiate this, v is 2 times at minus 3 bt square. Acceleration निकालोगे दोबारा differentiate करके तो it will be 2a A by minus 6 bt. इसको 0 put कर देंगे. t is equal to a by 3. Vedika, Yes, sir. got the answer? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so अब थोड़े difficult वाले कर लेते हैं, like yeah, question number 22. Question number 22. Acceleration of a particle given as a is equal to 3t cube plus 3t square plus 2t plus 2. Find the particle starts with, okay. Acceleration as a function of time is given. This is the same question with a numerical value. Yes, और sir. हमें find V minus V naught is equal to. v minus u is equal to integration of a dt. Quickly find the answer. क्या आएगा? Yes. Vedika, what's the answer for question number 22? So just a minute. Second answer is So 12, I think. Priti, what is your answer? Priti, what is your answer? Yukta, b minus u is 0 to t. 0 to t a dt. So 18 meters per second. 18 meter per second. V minus 2, 0 Also to getting 2. 18, yeah.
3t square plus 2t plus 2 times dt. It becomes 3 into t cube by 3 plus 2 into t square by 2 plus 2 times t. Limit from 0 to 2 v minus 2. सर So बी t cube is 8 plus 4 plus 4. That becomes 16. So it will be 18 meter per second. Okay, very good. Next question is, so अभी हम कर रहे हैं question जिनमें variable as a function of time given हो. Question number 21. Question number 21. Solve question number 21. A is given as 60 plus 5. Start from origin, distance covered in 2 seconds. Yeah, 18. question number 21 is Yukta हो रहा है question 22 done. 18. So 22 हो गया, Sir, 21 18. कर रही हूँ. Okay. सर बी 21 answer is B. Right. Answer is B. Please check. Vriti, you are getting this? A is 60 plus 5. Vriti, Yes, sir. answers are beta. Yes, sir. 22 done. No, sir, I'm doing that. Uh-huh. 21 हो गया. 22 is done. Yes, sir. नहीं, Okay. sir. Wait. So उसके पहले वाला हो गया, उसके next वाला कर रही हूँ. Okay. So can you show the 21 is- question again, the 20? They're asking Yes. for distance or displacement? Distance. Distance. So is this going to be different in this case? Because I'm getting 18, but that's just by the normal. I This don't know. is when you calculate velocity, if velocity is all the terms are positive, then there will not be any change. Because Okay. if it is positive, that cannot become zero. Like if you integrate here, acceleration, it will become some positive thing only. All the terms are positive. Yeah. Uh-huh. सर Okay, I got Yes. it now. So basically, displacement here in this case, because Yes. velocity, if I put it as 0, you won't get a value of p. So it doesn't change its Because direction. it is all the time positive, so obviously it cannot become zero. Okay, got it. So It it's cannot 18 become zero. b. Yes, answer is 18. Manan, Yes, sir. Yes, sir. सर अभी हुआ नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ. सर okay. Yes, Harsh. सर 21 में तो बोल भी रहा है ना कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा सिर्फ. स्ट्रेट लाइन में बोल रहा है ना सिर्फ. स्ट्रेट लाइन में तो ऐसा भी सकता है कि सीधे जाके वापस आ जाए. स्ट्रेट लाइन में सीधे जाके वापस भी आ सकते हैं ना. ये चैप्टर ही sir. मोशन स्ट्रेट लाइन में, सब में स्ट्रेट लाइन ही मूव करेगा. बट स्ट्रेट लाइन में तो डायरेक्शन बदल सकते हैं ना, सीधे जाके फिर पीछे आ गए. यस उसमें जहां पे टर्न होता है वहां पे भी जीरो. बट इन दिस केस दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज जब एक्सेलरेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? रेस्ट. Zero. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. यस. सो v minus 0 is integration of a dt. युक्ता, ये इंटीग्रेशन हो रहा है? जी सर. इसकी वेलोसिटी क्या है ये बताना. इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल वेलोसिटी टर्म. सर 3t square plus 5t. 3d square plus 5t. Nice. Very good.
अब ये कभी जीरो नहीं हो सकता ना कि t इक्वल टू 0 पे 0 है और उसके आगे बढ़ता ही जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी यहीं से मिल गई t इक्वल टू 0, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस वैसे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, बट सिंस इट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑलवेज, it will be positive only, 0 to 2 seconds. Right? इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालना इतना क्विकली। सर 80 18, इसका इंटीग्रेशन क्या है वैसे? EQ सर plus 3t 5 क्यूब बाय 3 तो 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5t स्क्वायर बाय 2। राइट, 0 टू इंटीग्रेट कर लेंगे, सो दैट विल बी 18। ओके, तो ये तो थोड़े इजी वाले इंटीग्रेशन थे। अब जो ट्रिकी वाले होते हैं लाइक दिस वन, नंबर 19 एंड 20। एग्जाम में ऐसे 19 20 टाइप वाले ही आते हैं, तो थोड़ा ऐसी रेयर चांसेस है कि इतने इजी वाले आ जाए। वेदिका 21 22 डन? Yes, sir. Okay. Hers, question number 20. A particle Yes. moves at the distance x in time t according to this equation, acceleration of the particle. Yes, this one. Solve. I'm giving you all time to solve this. It's a tricky one. Anshul, are you there? No. 19 करना है तो Sir, question दिखा दो। 19 20 दोनों करने हैं, 20। पहले जो भी कर लो। 19 भी करना है, 20 भी करना है। पहले 20 दिया मैंने करने के लिए। इसमें देखो हिंट क्या है, पहले सीधा डिफरेंशिएट कर दो, रूट लेने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए मैं हिंट दे देता हूँ, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। एक्स स्क्वायर को जब एक्स में डिफरेंशिएट करते हैं तो केवल 2x आता है युक्ता, बट अगर हम टी में डिफरेंशिएट करें तो इसको चेन रूल बोलते हैं। पहले नॉर्मल डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू dx बाय dt आ जाएगा। 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t। यस, तो यहाँ पर dx by dt becomes velocity and that velocity is t by x. Acceleration is dv by dt. युक्ता ये समझ में आ गया चेन रूल? जी नहीं। सर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसमें हमें एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर से डिफरेंशिएट करने के लिए dx चाहिए, तो हमने नीचे dx मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया और ऊपर भी किया, तो ये बन गया 2x टाइम्स dx by dt। अब लेकिन जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है d by dt और वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गया t by x। इसके लिए यूज करना पड़ेगा डिवीजन रूल। दो फंक्शंस के डिवीजन का जो रूल था डिफरेंशिएशन में, हमने डिफरेंशिएशन अलग से नहीं पढ़ा, साथ साथ ही पढ़ रहे हैं, तो आप इसको अलग से फॉर्मूले कहीं लिख लेना, बिकॉज ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज डिनोमिनेटर into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator divided by denominator square। इतना लंबा चौड़ा कुछ फंक्शन होता है। प्रोडक्ट में तो सिंपल होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बट इन द केस ऑफ डिवीजन इट बिकम्स, तो यहाँ पर समझ नहीं आया। हाँ बेटा
कुछ समझ नहीं आया। नहीं, ये तो फॉर्मूला है, इसमें समझना नहीं है, रटना है, जैसे बायो में रटते। दो फंक्शन अगर डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे टी और एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, उसको हमें ये समझ में आया, ये भी नहीं आया। v इज इक्वल टू टी बाई एक्स तक सब समझ में आया, उसके बाद क्या वो सब नहीं आया। हमें कैलकुलेट क्या करना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई dt। हमने v का फॉर्मूला पुट कर दिया विच इज t बाई एक्स, राइट। हाँ जी। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट जब हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा डिवीजन वाला फॉर्मूला। दो फंक्शन के डिवीजन के लिए फॉर्मूला होता है अलग से, सर f अपॉन g, जैसे यहाँ पे f इज t एंड g इज x। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। दिस इज डिवीजन फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। इसको तो रटना ही पड़ेगा। अब ओके कंपेयर करोगे तो यहाँ इस फंक्शन में f इज t एंड g इज x, तो ये हो जाएगा x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t माइनस t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। हम डिफरेंशिएशन अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, साथ साथ में जो फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं उनको आपको अलग से रेड बॉक्स में हाईलाइट करके साथ साथ लिखना है, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और उतने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ मतलब भर का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। दिस इज क्लियर नाउ? यस सर, अब आ गया समझ। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो हम क्या करने वाले हैं? पहला टर्म तो हो गया dt बाई dt, दैट विल बिकम 0, सॉरी 1। इसका डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1। ये है फॉर्मूला दैट वी हैव टू लर्न। इसको मैं अगले पेज में कर देता हूँ। दिस फॉर्मूला इज important because हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट इन एवरी चैप्टर वी हैव टू डू। बस इसीलिए फिजिक्स थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, स्पेशली फॉर दी बायो केस। सर डी X, ऑप्शन है। t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस t dx बाई dt यानी वेलोसिटी। कितना हुआ ये? dx बाई dt is t by x divided by x square। ओके, नीचे एलसीएम ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब। हर्ष, यस सर। your answer is D. D is not the correct answer. Correct answer is D भी correct हो जाएगा क्या? Yes. So it can be more than 1. मेरा तो X square minus t square will become 1 from this given equation. So it is 1 upon x cube. Answer is A. अगर हम यहीं से इसको ओपन कर दे तो शायद 1 by x minus t square by x cube. A and D both, so you can. और इस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। क्या क्या फिर से बोलो? फिर से बोलना, समझा नहीं। Come again. सर ये डी ऑप्शन में हम टी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/x³ आ जाएगा। वो तो ठीक है, तो दोनों आंसर करेक्ट हो गए ना। हम ये नहीं बोल हाँ। सकते कि ए करेक्ट है या डी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। सर ए कैसे आया इससे? एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। एक्स स्क्वायर इज 1 प्लस टी स्क्वायर। ओ अच्छा सर, ठीक है सर। यस, 2x into dx by dt। सर ये हमने लिखा हुआ है x इंटू डी टी बाई डी टी, फिर हमने 1 कर दिया, फिर माइनस ऑफ t इंटू डी एक्स बाई डी टी, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में कैसे t बाई एक्स आया?
dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी, ये जो ऊपर से हमने कैलकुलेट किया था इस हाँ टर्म जी से, हाँ जी हाँ जी dx by dt की वैल्यू है ना, ये 2 to ओह cancel, अच्छा exponential है, और dx by dt is t by x, ठीक है समझ गई। and dx by dt is velocity. बेटा आ गया समझ में? अनन्या, वृत्ति, आ गया सर। Yes, sir. okay, very nice. 19 is also similar, 19 is also similar. तो ये मैंने वर्कशीट आपको दे रखी है, ये आपको होमवर्क में करनी है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, we have 5-10 minutes left only. तो देखो अभी पॉइंट इज कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज आल्सो सेम, इट इज आल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम, तो ये आप अभी होमवर्क में कर लेंगे, या हम 14 अभी कर लेते हैं, नेक्स्ट असाइनमेंट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। 14 करते हैं, t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, फाइंड द एक्सेलरेशन। अभी ना क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही थी कि आप कितने क्वेश्चंस करते हो, नाउ एट द लास्ट मोमेंट क्वालिटी मैटर्स, दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन you have to understand thoroughly and you have to solve in a way that you also learn the concept and you also learn the application method. कोई थ्योरी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा बुक करने की जरूरत नहीं है, जितना भी हम करें उसको सॉलिड करें, तो अंडरस्टैंडिंग करके। t is ax square plus bx, that is the formula for, that is the t given here. अब हमें कैलकुलेट करना क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज सब एक्सेलरेशन को f ले लेते हैं कि इसमें a ऑलरेडी है, सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करके, बट ये फंक्शन t में गिवन है। एक तरीका तो ये है कि x में क्वाड्रेटिक है, पहले x को निकालो, गंदा सा फंक्शन आएगा, उसको दो बार डिफरेंशिएट करो। another method is that we will differentiate this on both the side, थोड़ा स्मार्ट मेथड, differentiate on both the side with respect to t। अभी कैसे पता पड़ेगा कौन सा मेथड यूज करना है? किसी को नहीं पता, एग्जाम में इट इज हिट एंड ट्राई। बट हाँ, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई लग रहा है, वो तो खतरनाक सा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ए कॉमन बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें टी के रेस्पेक्ट में, तो चेन रूल से 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी इज कॉमन 1/2 times ax plus b, so this is the velocity 1/2 ax plus b। हमने इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ले देखिए, यही समझ में आ रहा है कि जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं या थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एमटी में। मुश्किल का मतलब इन्वॉल्विंग मैथ्स, मोर मैथ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। सो अगर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है, you have to make peace with maths, especially the differentiation and integration part. You cannot score beyond 140 150 in NEET without that. क्या है आंसर मनन? फिर ए a d by dt of, याद है या अभी सॉल्व किया है? याद है, कर रखा है पहले को भी। मुझे लग गया था। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, सो ये चेन रूल से 2x plus b होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर जिसको हम x डिफरेंस एज्यूम करते हैं, उस फंक्शन को फिर से, दिस इज बाय चेन रूल, 1/x differentiation is -1/x square, so 1/2 ax plus b square is -1/2 x plus b square। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर 19 का सिर्फ बी है क्या? एक मिनट बेटा, पहले ये कर लेते हैं। इसमें ऊपर इंटीग्रेट करोगे
वेदिका ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं, बिल्कुल एकदम बिंदास बोल रहे हैं। नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है। ये बस प्रॉब्लम है इस चेन रूल की। जब हम 1/x को डिफरेंशिएट करते हैं, युक्ता 1/x डिफरेंशिएशन इज युक्ता सॉरी 1/x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला होता था x टू द पावर n इज n into x raised to power n minus 1 minus 1 x raised to power minus 2 करेक्ट करेक्ट। यस सर। युक्ता आपको समझ आ रहा है? जी सर। अभी सेकंड वाले फंक्शन में कुछ हमें करना था d by dt of 1/2ax plus b। अब हमने क्या किया, 2ax plus b को कुछ अज्यूम कर लिया, सम न्यू फंक्शन x में भी। ये बन गया d by dt of 1/x। वेदिका हाँ जी सर। हाँ जहाँ समझ में ना आए वहाँ बोल देना, ठीक है? आई विल ट्राई, बट ये थोड़ी सी मैथ्स है, इसमें मोस्टली साइकोलॉजिकल ज्यादा होता है। इसको हमने क्या किया, ए वेरिएबल में dx से मल्टीप्लाई, dx से डिफरेंशिएट। जैसे 1/x का होता है -1/x स्क्वायर, वैसे 1/X स्क्वायर का हो गया -1/X स्क्वायर, और इनटू d by dt ऑफ 2ax plus b। ये बन गया ऊपर। x की वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी उसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -1/2ax plus b होल स्क्वायर। ऊपर का डिफरेंशिएट करोगे तो 2a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन dx by dt, राइट? सर एक बार पीछे वाले पेज पे जाना प्लीज। पीछे वाले पेज पे यही आया था आंसर सॉल्व करके, -2x प्लस। अभी आंसर नहीं आया, वैसे आंसर आ जाएगा यहीं से। अच्छा ठीक है, अब कर लो। हम्म कितना है फिर ये, -2a dx by dt तो हो गया v, dx by dt को लिख लिया वेलोसिटी, और 1/2ax plus b भी था v के इक्वल। ये बन गया है 1/2ax plus b का होल स्क्वायर, so this also become v square। एक्सेलरेशन की वैल्यू बन गई -2a v cube, which is the first option। So in case if you have difficulty in understanding, that is only because of that differentiation and integration part। So we'll have to take care of that। ये थोड़ा डिफरेंशिएशन के बेस तो हमने ये फर्स्ट वर्कशीट कर लिए, जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको करने हैं होमवर्क में, एंड आई विल आल्सो प्रोवाइड द हिंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है? दो आई डोंट वांट हिंट एंड सर ये सॉल्यूशन। पीडीएफ शेयर कर सकते हो आप प्लीज? हाँ बेटा, ये पीडीएफ आज की सेंड कर देना प्लीज। हाँ बेटा, ये मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ राइट अवे। और सर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की भी कोई वर्कशीट हो तो प्लीज सेंड कर देना। वर्कशीट आपकी